हेलो स्टूडेंट्स। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोपेगेशन। हमने फाइंड आउट किया था वेक्टर वेव इक्वेशन ए की टर्म में और बी की टर्म में, और हमने के फाइंड आउट किया। के का नेचर कॉम्प्लेक्स पाया गया, उसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किए। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर की आउटकम थी मैं उसको यहाँ पे नोटिफाई कर देता हूँ। ठीक है, आपने फाइंड आउट किया प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर वेव इक्वेशन। ठीक है, दिस वाज डेल स्क्वेयर ई माइनस म्यू सिग्मा curly e by curly t, and then you have minus mu epsilon curly square e by curly t square. This is equal to 0, and the vector wave equation in terms of magnetic field was, यहाँ पे e की जगह b आ जाएगा, so this will be del square vector b minus mu sigma curly b divided by curly t minus mu epsilon curly square vector b divided by curly t square. This will be equal to 0, and we computed the condition that must be satisfied by the vector k. ठीक है, उसको सोल्व किया आपने, हमारे पास रिजल्ट आया कि स्टार दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा. So in conducting medium, the propagation vector is complex. This is complex. Okay, इसका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. And the value of real part alpha that came out to be omega root mu epsilon by 2, and then you have root of 1 plus sigma epsilon omega square, and then you have plus 1 and its power half. Okay, 1 by 2, and the value of imaginary part, this is omega root mu epsilon by 2. Then you have root of 1 plus sigma epsilon omega its square and minus 1 and its power half. So this is the value of beta. Okay, in the first lecture I have told you about good conductor and bad conductor, वो इन अल्फा एंड बीटा से ही डिसाइड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन. ये जो वेक्टर वेव इक्वेशन आपने राइट की हैं, इनके अंदर आप के को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और देखेंगे उनके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, और ग्राफिकली भी उस चीज़ को समझेंगे. तो अब देखिए, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन होती हैं तो उसके अंदर हमारे जो सॉल्यूशन बनेंगे ई एंड बी के, दोज विल बी लाइक सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर वेव equations. Vector wave equations will be E will be amplitude of E. Okay, then you have e raised to power iota vector k. Okay, and then you have vector r its dot minus omega t, and then you have a unit vector along the direction of e. तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे. अब b का जो वेक्टर वेव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ b, उसका हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी b नोड e raised to power iota. Same way I will write it like minus omega t and a vector unit vector along the direction of b. ये मैंने फाइंड आउट कर लिया.
अब मुझे के की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा वो देखना है। तो ई का देखिए, ई विल बी इक्वल टू ई नोड ई रेज टू पावर आयोटा, और यहाँ पर मैं के की वैल्यू रख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, एंड इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ के कैप। यहाँ पे लिख दिया मैंने आर, वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी, and then bracket close and a unit vector along the direction of E. Done. Now if you solve it, then you will get, you have here E node, and if I multiply here iota inside, then I will get iota into iota, iota square, then I will, iota square is -1, so e raised to power minus beta and r cap dot k cap, this is the direction along which wave is moving, so I will write here r, and then again I have e raised to power iota, rest of the part I will take inside, and that is alpha into k cap dot r. ओके आप इसको सीधा यूँ भी लिख सकते थे के आर। ओके, तो दिस इज द थिंग माइनस ओमेगा टी, and here I have I cap. In the same way, if you find, substitute the value of b, k here, then you will get b node e raised to power minus beta r e raised to power iota, then you have alpha, then you have k cap dot vector r minus omega t, and then you have b cap. ओके, अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। देखिए अब तो मेन चीज़ यहाँ पे जो समझने की है, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। यू कैन सी here the amplitude is position dependent and it will decrease exponentially, and this factor beta, which is the imaginary part of propagation vector, that is nothing but damping factor. Okay, so this is the factor that decide how speedily, how rapidly the electric field and magnetic field will decay in the conducting medium. Okay, so this is the thing here. If I show it graphically, then let at r equal to 0 the conducting medium starts. Okay, let me see first, let me check this is visible. Yes, this is in the screen. I do not have any helper. Okay, so and a wave, let me take this axis slightly above, electromagnetic wave is traveling like this, suppose, and what will happen actually, the medium after this line on the right hand side, that is conducting medium. ये आपका conducting medium है, conducting, और ये मान लो आपका एयर है और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है ये आपका तो इसके अंदर हमारे ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं, ठीक है, और उनमें हमारे पास ये पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला पार्ट नहीं है तो डैम्पिंग फैक्टर नहीं होगा वहाँ पे, एम्पलीट्यूड डैम्प नहीं होगा, तो अनडैम्प्ड सॉल्यूशन होते हैं किसके अंदर, एयर मीडियम में एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑसिलेटरी तो होगा, लेकिन ऑसिलेटरी तो होगा लेकिन एम्पलीट्यूड डीके होगा आपका, ये देखिए एक्सपोनेंशियल डीके होगा इसका, ठीक है। तो आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस देयर विल बी नो फर्दर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर मान लो जब यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना एम्पलीट्यूड था
तो धीरे धीरे ये घटता जाएगा एंड इट विल फॉल एक्सपोनेंशियली। देखिए आप समझ पा रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे घट रहा है एंड द रेट ऑफ डिके दैट इज ई रेज टू पावर माइनस बीटा आर। सो दिस इज द मीनिंग। तो ई एंड बी दिस विल डिके। तो यहाँ पे देखिए ऑसिलेटरी सॉल्यूशन तो है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, उसकी डैम्पिंग हो रही है। तो कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जो सॉल्यूशंस होंगे ना, ई होंगे, एम्पलीट्यूड होगा, that will decay exponentially and the solution will be oscillatory। ठीक है, I will summarize them in a separate video। आपका एयर, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग मीडियम में किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और उनका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन तो है यहाँ पे, ठीक है, बट दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, किसमें, कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने वेक्टर वेव इक्वेशंस हैं उनको समराइज किया, ठीक है। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर जो इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने कैलकुलेट कर लिया था, इनके रूट कैलकुलेट कर लिए थे, ये डिस्कस किए। और यहाँ पे हमने देखा कि जो सॉल्यूशन है वेक्टर वेव इक्वेशन का वो कैसा होगा, कंडक्टिंग मीडियम में ऑसिलेटरी होगा एंड डैम्प्ड होगा। तो अब देखिए बाकी जो डिटेल्स हैं वो इसकी आने वाले लेक्चर्स, जो अदर लेक्चर बनाऊंगा मैं, उनके अंदर डालूंगा। सो देखते रहें मेरे वीडियोस, इनको शेयर करते रहें और ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर।